শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 88 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 3.88 অনওয়ার্ডস। 88 নম্বর শ্লোক। আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে, আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে, তথাপি তাহার ভক্ত জানোয় তাহারে। তথাপি তাহার ভক্ত জানোয় তাহারে। শ্রীকৃষ্ণ বহুভাবে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তবুও তার শুদ্ধ ভক্ত তাকে যথাযথভাবে চিনতে পারেন। तो इसका भी एक उदाहरण दिया है, श्लोक रेफरेंस। इसका मतलब क्या कि भगवान अपने आप को बहुत बार हाइड करने का प्रयास करते। जैसे चैतन्य महाप्रभु लीला में हम लोग देखते हैं कि महाप्रभु को बहुत बार भक्त लोग विष्णु बोल के संबोधन कर रहा है, और महाप्रभु क्या करते ये सुनकर अपने कान बंद कर देते, बोलते विष्णु विष्णु छी छी छी, हमको मत बोलो भगवान। वैसे हम लोग देखते कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी भगवान को बोलते आप तो मेरा माता पिता है। बोले जी मैं तो एक साधन ग्वाला हूँ, तुम्हारा माता पिता तो नारायण है। ऐसे करके उल्लंघिता त्रिविध सीमा उल्लंघिता त्रिविध सीमा समातिशायी, उल्लंघित त्रिविध सीम समातिशायी, संभावनां तव परिवृद्धिमा स्वभावम्, संभावनं तव परिवृद्धिं स्वभावम्, माया बलेन भवतापि निगूयमानम्, माया बलेन भवतापि निगूयमानम्, पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्य भाव। पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्य भावा। এই শ্লোকটি শ্রী যমুনাচার্যের স্তোত্ররত্ন 13 নম্বর 13 সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত। এখানে বলছেন, হে ভগবান, সমস্ত জড়বস্তুই দেশ, কাল ও চিন্তা এই তিনটি সীমার দ্বারা আবদ্ধ, কিন্তু তবু তোমার অসম ও অনতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তুমি ওই সীমাকেও সর্বদাই উল্লঙ্ঘন করতে পারো। যদিও তুমি তোমার ওই স্বভাবকে নিজ শক্তির দ্বারা আচ্ছাদন করো, কিন্তু তবুও তোমার অনন্য ভক্তরা সর্বদা তোমার দর্শন করতে সমর্থ। মানে आप छुपाना चाहते हो आपका भगवत्ता, लेकिन आपका जो डिवोटीज लोग वो आपको पकड़ में आ जाता है, आपको समझ में आता है। এই শ্লোকটা যমুনাচার্যের স্তোত্ররত্ন 13 সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত। মায়ার প্রভাবে আচ্ছাদিত সবকিছুই স্থান, কাল ও চিন্তার দ্বারা সীমিত। সবচাইতে বৃহৎ যে বস্তুর ধারণা করা যায় সেই আকাশও সীমিত। প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে জড় আকাশের মধ্যে রয়েছে 7টি আবরণ, তাই না? এবং পূর্ববর্তী আবরণ থেকে পরবর্তী আবরণটি 10 গুণ বৃহৎ। এই 7টি আবরণ কি কি? ইন্দ্রাণী মাতাজি, সেগুলো আমরা 8টা পড়েছিলাম, এখানে 7টা দেওয়া আছে, ঠিক আছে? क्या क्या है? सुभाष प्रभु। হ্যাঁ বলুন প্রভু। यस महामंजरी माता जी। जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि। हाँ, शायद एक तो मिसिंग हो रहा है इधर, अहंकार शायद। अहंकार होगा फिलहाल। ठीक है। और ये 7 आवरण है ब्रह्मांड का, ठीक है? हम लोग ने देखा है गोकुमार का स्टोरी में भी, जो कैसे वो एक एक करके सब भेद करके पार करता है। पंकज प्रभु थोड़ा एक बार वो फोटो दिखाइए जूम करके, ये 7 आवरण ब्रह्मांड का कहाँ है।
এই আবরণের স্তরগুলি বিশাল, বহুত বড় কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জড়জগৎ সীমিত। স্থান ও काल সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা সীমিত। हम लोग को मालूम है कितना बड़े ये वर्ल्ड का, अर्थ का कितना एरिया है, सब कुछ भी नो एक सीमित है। काल अनंत, আমরা কোটি কোটি বছর সম্বন্ধে কল্পনা করতে পারি, কিন্তু অনন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিতান্তই নগণ্য। আমাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়গুলি তাই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে না, অথবা তাকে আমরা সময় সীমার মধ্যে অথবা আমাদের চিন্তা শক্তির মধ্যে আনতে পারি না। উল্লঙ্ঘিত শব্দটির মাধ্যমে তার সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি স্থান, কাল ও চিন্তার অতীত। যদিও তিনি তাদের মধ্যে আবির্ভূত হন, তবুও তিনি সর্বদাই সেগুলির অতীত। এমনকি ভগবানের চিন্ময় অস্তিত্ব স্থান, কাল ও চিন্তার দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে স্থান, কাল ও চিন্তার অতীত তার প্রকৃত स्वरूपকে दर्शन करते पारे। तो यद्यपि भगवान जब अवतरण होते द्वापर युग में, भगवान कितना साल थे द्वापर युग में? कितना साल लीला किया? 125। लेकिन भगवान को भक्त लोग को मालूम है, ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ 125 साल का ही है, नहीं, असीमित है भगवान का, अजय है भगवान। जन्म का कोई डेट ऑफ बर्थ डीओ भी नहीं, हम लोग का डेट ऑफ बर्थ है, भगवान कुछ नहीं है ऐसा डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट तो कभी है ही नहीं कुछ। ये भक्त प्रकटेर डेट আছে, प्रकट যে হইলো ওইটা ডেট আছে, জন্ম নেই। लेकिन बाहर का लोग बोलेगा नहीं नहीं, ये तो आपका कृष्ण तो सिर्फ 125 साल जिए थे, इसका तो मर गया। अभी हम लोग को तो अच्छा से मालूम है भगवान कभी मर नहीं सकते हैं। भगवान अपना लीला समाप्त करने के लिए एक शिकारी ने तीर मारा, तीर भगवान के चरण स्पर्श करने के आगे से ही भगवान ने प्रवास क्षेत्र से अपने धाम वापस लौट गए, है ना। तो हम लोग को, ये भक्त लोग को मालूम है, बाहर का लोग तो ऐसे इसको बोलेगा अरे ये तो 125 साल, हमको मालूम है, देखो लिखा है शास्त्र में। অর্থাৎ ভগবান যদিও সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হন না, কিন্তু চিন্ময় ভক্তির প্রভাবে যারা মায়ার আবরণ থেকে মুক্ত হয়েছেন তারা তাকে নিরন্তর দর্শন করতে পারে। हाँ, हालांकि हम लोग के सामने भगवान है क्या? नहीं है, फिजिकली नहीं है, लेकिन शास्त्र के माध्यम से, हरि कीर्तन और भगवान का लीला श्रवण के माध्यम से हम लोग भगवान को देख पाते हैं। जब हम लोग भगवान का गोप कुमार का स्टोरी पढ़ रहे थे तो बृहद भागवतम में हम लोग अनुभूति कर रहे थे कि किस तरह गोप कुमार भगवान से मिलते हैं, भगवान जब प्रभु जी फिजिकली आते जमीन पे गिर जाते हैं, ऐसे करके हम लोग को अनुभूति होता है। तो सामने नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट ऐसा हम लोग देख सकते हैं। प्लस भगवान इस जड़ जगत में भी कुछ कुछ चीजों में भगवान नित्य निवास कर रहे हैं, कुछ कुछ स्थानों में और कुछ कुछ चीजों में। जैसे भगवान इस जड़ जगत में गोवर्धन रूप में अब प्रकट हुए हैं, शालिग्राम रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान प्रकट भी हुए और प्लस नित्य निवास करते हैं कुछ कुछ स्थानों में, जैसे शास्त्र में दिया है कि भगवान शचिर रंधन, नित्यानंदेर नर्तन, श्रीवास अंगन और राघव भवन, यहाँ गौरांग महाप्रभु नित्य निवास करते हैं। तो ये सब से हम लोग की कृपा करने के लिए भगवान ये सब स्थान में भगवान भी नित्य निवास करते हैं। বঙ্কিম প্রভু প্লিজ কিছু বলতে হলে গুগল হাত উঠিয়ে কাইন্ডলি। সূর্যকে মেঘাচ্ছাদিত মনে, হ্যাঁ इंदिरा सखी माती बोली माता जी अनम्यूट करिए। प्रभु जी इसमें जो ये बता रहे हैं कि सूर्य नहीं, ये वाला लाइन, यद्यपि दूसरे शब्दों में भगवान सामान्य व्यक्तियों की आंखों से नहीं दिखते, किंतु जो लोग अपनी दिव्य भक्ति के कारण इन आवरणों से परे हैं उन्हें वे देख सकते हैं। तो क्या प्रभु ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, दिव्य आवरण से तो नित्य लीला देख के सकते थे, भगवान का लीला में प्रवेश भी कर सकते थे। कितना बार प्रभुपाद जी को भक्त लोग देखे, प्रभुपाद जी कहीं कुछ चिंता मग्न थे ऐसे करके, तो प्रभुपाद जी को बोला प्रभुपाद जी व्हाट हैपेंड, प्रभुपाद जी ओ प्रभुपाद जी हरि बोल स्वामी जी, हाँ क्या यस व्हाट, प्रभुपाद जी बोला मैं नारद मुनि के साथ वार्तालाप कर रहा था, मालूम है ये लीला में आता है। सो माय पॉइंट इज, ऐसे भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ
जो शुद्ध भक्त हैं उन लोग का आदान प्रदान चलते रहता है। कितना बार हम लोग ने देखा शास्त्र में किस तरह भक्त लोग भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, कितना उल्लेख है। यस बंकिम प्रभु। না যেখানে যেখানে ভাগবত পাঠ হয়, যেখানে হরিনাম সংকীর্তন, সেখানে রাধা কৃষ্ণ আর হনুমানজি প্রকট থাকেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু এখানে মানে মানে বোঝা যায় অনেক লোক ঘুমোয়, অনেক লোক মানে শুনতে পারে না, এরা হচ্ছে মায়ার জগতে থাকে, এটা আমাদের প্রমাণ। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং হনুমানজি প্রকট থাকেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस प्रीतिमानंद प्रेम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते थे ना कि रात में कि वो राधा कृष्ण भी रास करके आए हैं, उनके लिए हम जा रहे हैं पूरी बनाने, इस तरह से भी है, हम लोग सुने हैं सबसे आचार्यों से। एब्सोल्युटली। उसीलिए यहाँ लिखा गया है जो लोग इस अष्ट आवरण से परे हैं, यानी वो फोटो मिला जो ये 8 आवरण को भेद करके जिनका चेतना फोटो मिला पर वो जूम नहीं होगा। अच्छा, ये 8 आवरण ब्रह्मांड के 8 आवरण है। हम लोग देख सकते हैं, वो फोटो में दिया हुआ है। ये 8 आवरण को भेद करके जिसका चेतना चिन्मय स्तर पे, हालांकि उनका शरीर यहाँ है लेकिन चेतना चिन्मय स्तर पे है, उन लोग साक्षात भगवान का अनुभूति किया, भगवान का दर्शन, भगवान का लीला में प्रवेश सब कुछ कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं रूप गोस्वामी ऐसे करके बैठे करके ऐसे भगवान का लीला में स्मरण करते, किस तरह भगवान ने श्रीमती राधा रानी को गोदी में उठाकर फूल तोड़ने के लिए ऐसे करके उठाया और श्रीमती राधा रानी डाली के ऊपर ऐसे करके। ये लोग आचार्य हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत माने हाई लेवल पे है, लेकिन हम लोगों के लिए पॉसिबल है क्या? कभी हो पाएगा? एकदम पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। हम लोग का अगर ऐसे सरेंडर करके ही तो आस्ते आस्ते जो जितना समर्पित है भक्ति में, जो जितना प्रगति कर रहा है, भगवान अपने आप को उतना प्रकाशित करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये हम लोग के लिए हंसी का मैटर हो सकता है, लेकिन ये सत्य बात है। शास्त्र में जो है एकदम सत्य बात है कि जो जितना अपने आप को समर्पित किया है, भगवान अपने आप को उतना उस व्यक्ति के पास प्रकाशित करेगा। समर्पित, प्रकाशित, हम समर्पित करेंगे, भगवान प्रकाशित करेगा। और ये तो कुछ ऐसा बात नहीं है कि सब अपने आप को, सब जिसको दर्शन होगा तो वो सब अनाउंस करेगा, हरे कृष्णा कल मेरे को भगवान का दर्शन मिला था, भगवान मेरे वैसे बोलेगा नहीं वो तो इसमें आनंद में रहेगा वो। एक्चुअली वैसे भक्ति, ऐसे भक्त जिनका ऐसे अनुभूति होगा, ही विल बी वो अपने ये सब चीज बोलने का नहीं है। तो ये एकदम है। और कितना आचार्यों का हम लोग देखते हैं, तो जब ऐसे को किसी का अनुभूति होगा वो तो आस्ते आस्ते इस जगत से वो अपना शरीर को त्याग करके भगवान के धाम भी वापस चला जाएगा, है ना। यस, हाँ बोलून बंकिम प्रभु। जो रघुनाथ गोस्वामी যখন ধ্যান করতেন, রাধা রানী স্বয়ং এসে শাড়ির জায়গা ছায়া দান করতেন গাছে। বলছেন বুঝতে পেরেছেন উনি কি বলছেন? ওনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন? না সরি, ওটা তো শোনার ধৈর্য নেই। উনি প্রশ্ন করেছেন যে আপনারা যে উদাহরণ দিচ্ছেন এগুলো তো সব আচার্যদের উদাহরণ দিচ্ছেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কি ভগবানকে সামনে দর্শন করতে পারেন? আপনাকে উত্তর দিতে হবে না, আমি এটাই বলছি। প্রথম প্রশ্নটা শুনুন, আর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরটা দিলে জিনিসটা আরো সুন্দর দাঁড়াবে। প্রশ্নটা পেয়েছি দেখতে দেখতে রাধারানী স্বয়ং উনাকে আশীর্বাদ করেছেন এবং জল থেকে তুলেছে। হবে না, আমি এটাই আপনাকে অনুরোধ করব যে যা প্রশ্ন করেছে সেই অনুযায়ী উত্তর দিলে জিনিসটা আরো ভালো দাঁড়ায়। হ্যাঁ, প্রশ্ন করলো রাম, আপনি দিলেন শ্যাম, এটা জিনিসটা ম্যাচিং হয় না, ঠিক আছে। एगलो ये सब हम देखेंगे, ये पॉलिटिशियन लोग ऐसे करते हैं, पॉलिटिशियन को बोलेंगे आप तो फिर ये आपका नाम घोटाला में आया है, आप इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे करके पॉलिटिशियन को कोई पूछेगा, रिपोर्टर लोग, तो पॉलिटिशियन उत्तर देगा। मैं आपको बताया था ना, मैं जब उधर इलाहाबाद से लौट रहा था तो मैंने प्रयागराज दर्शन करके आया। ये क्या उत्तर दे रहे सर? आपने शायद प्रश्न नहीं सुना, मैं आपको पूछ रहा हूं तो आप ये स्कैम में इन्वॉल्व थे क्या? हाँ, फिर उधर ना बहुत सुंदर मैंने रामलला का दर्शन किया, कितना सुंदर अयोध्या में मंदिर बनाया, बहुत अच्छा लगा, आरती भी किया मैंने उधर, वाह। बोला अरे सर आपने सुना नहीं मैंने क्या पूछ रहा आपसे? तो ऐसे लग रहे से इसको बोलता है बीटिंग अराउंड द बुश। हियर द क्वेश्चन, आंसर टू द पॉइंट, हिट द नेल। ओके, कहाँ थे हम लोग?
সূর্য মেঘাচ্ছিদ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র জীব দৃষ্টি মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। সূর্য কখনো মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় না। समझ में आया ये एनालॉजी? सूर्य कखनो मेघेर द्वारा आच्छादित तो है ना, सूर्यदेव तो है उधर, वो क्लाउड हम लोग का आंखों का सामने आ गया। ये बोलना ठीक नहीं होगा कि क्लाउड सूर्य के सामने आ गया। क्लाउड एक छोटा छोटा टुकड़ा होगा, कोई क्लाउड पानी का। सूर्यदेव तो ह्यूज है, उसका सामने क्लाउड आकर कभी ढक सकता है क्या? नहीं। समझ में आया क्या बोल रहे? तो इसीलिए भगवान का भी हम लोग देख नहीं पा रहे भगवान को, ये हमारा कमी है, ये हमारा इंद्रियों का कमी है कि हम लोग भगवान को ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि भगवान इतना छोटा थे कि हम लोग दर्शन ही नहीं कर पाए, नहीं। সেই ক্ষুদ্র দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষরা যদি একটি বিমানে চড়ে মেঘের উপর উঠে যায় তাহলে তারা আবার সূর্য ও সূর্যের কিরণ দর্শন করতে পারে। हरि बोल। ऐसा होता भी है ना, प्लेन में जो चलता है देखे होंगे, जब नीचे देख रहा था तो क्लाउड खिड़की के बाहर प्लेन से, लेकिन वो क्लाउड के अगर ऊपर जब प्लेन चला जाता है तो पूरा एकदम आंख बंद, आंख इतना सनलाइट इतना तेज है कि आपको खिड़की बंद करना पड़ेगा। তেমনি মায়ার আবরণ যদি অত্যন্ত প্রবল কিন্তু তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলেছেন দৈবী এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति। भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में कि मेरा जो माया शक्ति है बहुत डेंजरस है, देवी एषा गुणमयी। सोचिए अगर भगवान कोई चीज को बोल रहा है बहुत शक्तिशाली है तो वो वस्तु या वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। सोचिए भगवान खुद बोल रहे हैं भगवान बोल रहे सुनो, हम लोग को बोल रहा है बेटे ये सब, ये जो मेरा देवी शक्ति है ना बहुत शक्तिशाली है, इसको अतिक्रम करना बहुत शक्तिशाली है, इसको अतिक्रम करना। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा। और ये सबका साक्षी हम लोग है ना, कितना बार हम लोग माया के चंगल में फंस जाते हैं, हम लोग का इंद्रिय कितना बार माया के सामने फेल हो जाता है, होता है ना। तो हम लोग को पता चलता है माया इज सो पावरफुल। लेकिन भगवान वही भगवान फिर बोलती भी है मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति। हाँ, जैसे सिगरेट बीड़ी छोड़ना कितना मुश्किल है, शराब छोड़ना कितना मुश्किल है, चाय छोड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन इंद्रावती माता जी वही भगवान ये भी बोलता है ना कि जो मेरा शरण ग्रहण करता है उसके लिए चाय ऐसे ऐसे छूट जाता है। आप लोग में से कौन कौन साक्षी है इसका? कौन कौन 18-20 कप पीते थे और ऐसे अभी छूट गया? हाँ, सरोज माता जी हाथ उठाए, देखिए। मैं भी ऐसे। कितना लोग हाथ उठाए देखिए। प्रभु जी बहुत मुश्किल था, लेकिन पता नहीं कैसे छूटा और मन भी नहीं हुआ कभी। हाँ, तो ये देवी एषा गुणमयी का एकदम दृष्टांत है ये श्लोक का कि भगवान बताते हैं कि बहुत डेंजर है ये चाय छोड़ना। चाय के बिना कोई कोई हम लोग कंप्लेन करते हैं प्रभु जी अभी हमका बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, चाय नहीं, हम चाय बंद कर दिया। कितना कुछ बहाना मारा लोग, लेकिन आजकल अगर मुड़ के देखे तो चाय तो छूट भी गया ना। क्यों? क्योंकि हम लोग ने 4 नियम 16 माला ये सब प्रण किया गुरुदेव के सामने, और फिर चाय कहाँ छूट गया, कौन से कॉर्नर में छूट गया भूल भी गया। कल मैं प्रवचन में सुन रहे थे, साधु बता रहे थे प्रवचन में कि जैसे हम लोग चाय छोड़ा, जो चाय छोड़ा उसको पूछिए, जो 20-25 कप चाय पीता था, आप कब चाय छोड़ा? क्या आपने डेट को नोट किया? तो व्यक्ति ने उत्तर दिया क्या नोट करे, कौन सी बड़ी बात है, चाय छोड़ दे, इसका बाद नोट करने का क्या दे, नोट थोड़ी नोट करेंगे क्या, हमने 25 दिसंबर 2010 में चाय छोड़ा, ये लिखने लायक है क्या? भूल ही गया कब छोड़ा। सोचिए जो व्यक्ति के लिए चाय इतना महत्वपूर्ण था कि वो चाय के बिना बिस्तर से उठते नहीं थे ना। कुछ एक कॉन्सेप्ट भी है ना, बेड टी, पहले चाय फिर हम उठेंगे। और वो व्यक्ति चाय छोड़ दे और वो कब छोड़ दे उसको पता ही भी नहीं, ऐसे ही छूट गया, ऐसे ही छूट गया। तो यही है देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये देखिए ये ब्रह्मांड का 8 आवरण है, ये सबको जानना चाहिए। ये हम लोग का जड़ जगत का 8 आवरण है। जब हम लोग जड़ जगत में आते हैं तो एक एक आवरण को पहनते हैं। मैंने वो MRI वाला उदाहरण दिया था ना, सोचिए किसी का MRI होगा, MRI रूम में जब घुसेगा उसको घुसने के आगे उसको कपड़ा पहना देगा, बोले अपना कपड़ा छोड़ो ये कपड़ा पहनो, मैग्नेटिक कपड़ा पहनते हैं ना, और फिर पहन कर अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके लेट जाते हैं। तो वैसे जब इस ब्रह्मांड में कोई आता है तो ये 8 आवरण पृथ्वी जल, पहले साइको प्रॉब्लम, ये
मेरे को बोल दिया क्या? नहीं 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 बाबू, आपको क्यों बोलेंगे? जो चाय वाले का नशा होता है, नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा वो बात। ओह हाँ, अच्छा, हम लोग तब ठीक है, वेरी गुड। तो वैसे देखिए, ब्रह्मांड में घुसने से पहले सूक्ष्म शरीर लेता है, फिर स्थूल शरीर लेता है। हम लोग ऐसे ही किया था, हम लोग जब इधर आए थे। और जब लौट रहे हैं तो एक एक करके छोड़ रहे हैं। पहले स्थूल शरीर छोड़ते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दिखाई दे रहा है? और थोड़ा जूम करिए। और हो रहा है जूम? ये मैक्सिमम जूम। हाँ बाबू। और फिर सूक्ष्म शरीर, ये देखिए ब्रह्मांड है, ये हम लोग का ब्रह्मांड का अष्ट आवरण दिखाई दे रहा है बाएं तरफ, एक एक लेयर रेनबो जैसा। तो पहले स्थूल शरीर हम लोग छोड़ते हैं, फिर लास्ट में मन, बुद्धि, अहंकार छोड़ने के बाद, अहंकार लास्ट में जाता है, मिथ्या अहंकार, फिर हम लोग टुप करके भगवान के धाम चले जाते हैं। ठीक है? यस, दिलीप प्रभु बोलिए। ओके, 10 टाइम्स क्या लिखा हुआ? 10 गुना बड़ा। 10 गुना। तो एक एक आवरण दूसरे से 10 गुना बड़ा, यानी पृथ्वी से जल 10 गुना बड़ा, जल से फायर 10 गुना बड़ा, फायर से एयर 10 गुना बड़ा, एयर से ईथर 10 गुना बड़ा, ऐसे करके। माने हालांकि यहाँ तो एक जैसे दिख रहा है सब, लेकिन इतना बड़ा आवरण है, इतना चौड़ा आवरण है, सबको भेद करके जीव भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। प्रकृति 3टी गुण समन्वित हमारी देवी माया के अतिक्रम करा कष्टसाध्य। देखिए भगवान खुद बोल रहे हैं, ये देवी को अतिक्रम करना बहुत डिफिकल्ट, कष्टसाध्य। किंतु सोचिए, कोई अगर सरेंडर नहीं किया भगवान का प्रति और वो चाहे छुड़ेगा, तो उसके लिए कष्ट साध्य है या नहीं? बताइए बताइए। सोचिए, कोई जप नहीं कर रहा है, इस्कॉन में नहीं आया, उसको चाय छोड़ने के लिए डॉक्टर बोला, या सोचिए सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू छोड़ने बोला, गुटखा छोड़ने बोला, कष्ट का होगा ना? छोड़ेगा पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा 10 बार, चुप चुप के खाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जो भगवान के शरणापन्न हुए हैं, भगवान का नियम पालन कर रहे हैं, उसके लिए ऐसे छोड़ दिया तो छोड़ ही दिए, जैसे मैं उदाहरण दिया था। যারা আমার শরণাগত হয় তারা সহজেই এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে, সহজেই। यस, शुभंकरी राधा माता जी। चाय चाय छोड़ने में दिक्कत हुआ था? नहीं छोड़ने के लिए हाँ? क्या बोला? नहीं छोड़ने की जरूरत है, तकलीफ है बहुत। अभी अभी तकलीफ है? नहीं, अब नहीं है, पहले तकलीफ था, पहले बहुत तकलीफ, अब मालूम नहीं, है अब तो एकदम याद ही नहीं आता। पहले बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। सबसे ज्यादा कष्ट चाय में हुआ, और कुछ में नहीं। अरे माया शक्तिर प्रभावे अतिक्रम करा अत्यंत कठिन, किंतु যারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী পাদ পদ্মে শরণাগত হতে বদ্ধপরিকর, তারা মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়। তাই শুদ্ধ ভক্তরা ভগবানকে জানতে পারেন, কিন্তু দুষ্কৃতিকারীরা, অসুরেরা বহু শাস্ত্র প্রমাণ এবং ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপ দর্শন করা সত্ত্বেও ভগবানকে জানতে পারে না। ये द्रोणा, क्या नाम है उसका, धृतराष्ट्र, हाँ, भगवान उन लोग के साथ रहते थे, उनका रिश्तेदार थे, सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान को स्वीकार नहीं कराया। दूसरा कोई होता तो बोलता ना, ये भगवान है, पुत्र लोग को बोलता बिहेव योर सेल्फ। हाँ, दुर्योधन, क्या तुम ऐसा उल्टा पुल्टा काम करते हो, भगवान सामने प्रणाम करो। कुछ नहीं, ऐसे सामने रहते हुए भी उन लोग अंधे थे, वो जन्म से भी अंधे थे, कर्म से भी अंधे थे, धृतराष्ट्र। अगला श्लोक। असुर स्वभावे कृष्ण कभू नहीं जाने, असुर स्वभावे कृष्ण कभू नहीं जाने, लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने, লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে। যাদের স্বভাব আসুরিক তারা কখনোই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না, কিন্তু তার শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারে না। भगवान कितना बार भक्त लोग के सामने अपना महाप्रकाश लीला करा दिया, भगवान अपना रूप दर्शन करा दिया ना, कितना भक्त लोग के सामने, अर्जुन के सामने भगवान ने विश्व रूप दर्शन करवाया, सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने भगवान ने अष्टभुज रूप ना, शरभुज रूप दर्शन करवाया, रामानंद राय के सामने भगवान ने राधा कृष्ण का युगल अवतार और बीच में गौरांग महाप्रभु दर्शन करवाया। ये फोटो देखा आपने? देखिएगा, हम लोग का कलकत्ता मंदिर में था ऐसे फोटो, सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे देख रहे हैं और राधा कृष्ण मिलन और बीच में महाप्रभु, माने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखा रहे कि हम दोनों का जुगल अवतार है।
मुरारी गुप्ता जी ने भगवान ने राम लक्ष्मण सीतामढ़ी हनुमान जी का रूप दर्शन करवाया। तो भक्त लोग के सामने भगवान अपने आप को रिवील कर देता है, কিন্তু তার শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারে না। जैसे मैंने बताया था हरिपाल जी को सामने भगवान ने रुक्मिणी द्वारकाधीश का रूप दर्शन कराया था, आता है ना भक्तमाल में। ठीक है इंद्रावती माता जी, समझ में आ रहा है? ये संगिनी श्यामप्रिया माता जी, যে সমস্ত মানুষ हाँ प्रभु मैंने अरे वो हाँ, बोल बोलिए। रहे हैं कि विसर्जन में यहाँ मंदिर के सामने से एक मतलब एक जा रहा था तो उसमें एक सर्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु का माता वाला जी आवाज प्रकाश कट लीला रहा का है, था आवाज रुक रुक के और आ रहा है। मृदंग प्रभु जैसे जो आप सर्वभौम भट्टाचार्य का बोल रहे हैं ना, तो विसर्जन का एक लोरी में ये लीला था, बहुत अच्छा लगा। मृदंग कम से कम 30 मृदंग बज रहा था, बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे होता है ना बैंड बाजा जो चलता है, तो मृदंग का एक ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था, सब मृदंग बजा रहे थे और भट्टाचार्य में जो आप अभी लीला बताए ना, सर्व भट्टाचार्य के सामने प्रकाश किए थे, वो वाला भी था उसमें। अच्छा ओके, हाँ बोलिए বঙ্কিম প্রভু বলুন। জনাবাইকেও দেখিয়েছিল মরুকে ইয়েতে পুণ্ডরীকে উনি ভগবান, আর একে দেখিয়েছিল আপনার নারসিংহ মাতাকেও দেখিয়েছিল ভগবান এই চতুর্ভুজ হরিকৃষ্ণ ভগবান। तो इससे पता चलता है ভক্তদের কাছে নিজেকে গোপন রাখতে চায় না, भगवान चाहते भी नहीं अपने आप को गोपन रखने। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, तो हाँ। एक तरह तो भगवान अपने आप को गुह्य मतलब रखना चाहते हैं कुछ लीला में, हाँ। तो फिर जो भक्त फिर उनको क्यों प्रकाशित, क्योंकि उनको तो भगवान का इच्छा को ही मानना चाहिए ना। फिर से बोलिए। डिवोटी जो भगवान का छद्म रूप को रिवील करते हैं, तो डिवोटीज रिवील करते हैं। हाँ, मतलब डिवोटीज जो बता भगवान देते हैं उनके बारे में दूसरे भक्तों को या दूसरे लोगों को हाँ। रिवील कर रहे हैं, तो उनको तो भगवान का इच्छा को रखना चाहिए ना, कि भाई जो भगवान चाहते हैं कि मैं छद्म रखूं, तो फिर वो क्यों भगवान को इच्छा को ये कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं छद्म रखे जो लोग नास्तिक है उन लोग के लिए। ना हम प्रकाश सर्वस्व योगो माया समन्विता, मैं सभी के सामने प्रकाश नहीं होता हूँ, स्पेशली वो चार जो है ना उन लोग की प्रकाश नहीं होता है, लेकिन भगवान तो चाहते हैं कि सबके सामने प्रकाश हो, सब मेरे को जाने, मेरे वापस आ जाए धाम। भगवान तो चाहते हैं, उसीलिए तो भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार किया है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं मैं पानी का स्वाद हूँ, ये सूर्य और चंद्रमा जो देख रहे हैं ये मेरा आंख है। हाँ, इस तरह से भगवान अपने आप को इनडायरेक्टली प्रकाशित कर रहा है हम लोग के कृपा के लिए। और भगवान ने बता भी दिया भगवत गीता में कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जब तुम ये करना, जब धनी कोई ऐश्वर्यवान का ऐश्वर्य देखना, तो मेरे को याद रखना, मेरे को याद करना। हाँ। वही तो भगवान तो स्वयं रिवील कर ही गए हैं अपने आप को, भक्त भी उनको रिवील कर गए हैं। हाँ। तो फिर वो गुह्यता कैसे होगा? ये गुह्यता उन लोग के लिए है जो लोग भगवान को समर्पित नहीं होते, उन लोग के लिए गुह्य ही रह जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान मना किया कि मेरे को रिवील मत करना, भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते उन लोग के लिए जो भगवान के सामने शरणागत नहीं होते। नहीं तो भक्त लोग को तो हमेशा बोल रहा है प्रचार करो मेरे बारे में, प्रचार करो मेरे बारे में। যে সমস্ত মানুষ রাবণ ও হিরণ্যকশিপুদের মতো আসুরিক ভাবযুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের বিরোধিতা করে, तारा उन लोग के लिए कखनो भगवान के जानते पारे ना, उन लोग के लिए भगवान भी रिवील नहीं होता है और भगवान को जान भी नहीं पाते। किंतु श्रीकृष्ण तार शुद्ध भक्तों काছে নিজেকে কোনো মতেই গোপন রাখতে পারে না, और गोपन रखने बोलते भी नहीं है। भगवान भक्त लोग तो भगवान का हाथ हर एक कार्य में देखता है। सत्य बात बताइए, आप लोग के नीचे, आप लोग भी तो बहुत दिन भक्ति मार्ग में आए हैं, क्या आप लोग ऐसा बहुत बार घटना नहीं घटा जिस घटना को देखकर आपको पता चल गया कि भगवान का हाथ था इसमें? नहीं तो मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता। कितना बार ऐसा भी नहीं हुआ कि आप लोग असहाय होकर भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर सचमुच आप लोग का उस परिस्थिति से उद्धार किया? कैसा ऐसा बहुत बार हुआ प्रभु, 100% हुआ होगा। नहीं तो ये प्रभुपाद हुआ, एकदम साक्षात हुआ। यस, सो हम लोग खुद साक्षी हैं। खुद से पूछिए उस समय कितना असहाय के पूछा था, पुकारा था, और भगवान ने आकर काम भी करा दिया और आपको भुला भी दिया। बाद में आपने सोचा माय गुडनेस, मैं तो भूल ही गया धन्यवाद बोलने भगवान को
क्या हालत था मेरा, कितना मैं भगवान को पुकार रहा था, और हमको निकाल भी दिया, और मैंने थैंक यू भी नहीं बोला। मेरे को विस्मृति कर दिया उस परिस्थिति से। पूछिए, सब याद आएगा, अपने आप को पूछिए, सब याद आएगा। यस, प्रीति मेनंदे प्रिया माता जी। यस प्रभु जी, बोल रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग अभी भक्ति में हम लोग हैं, जो भी हैं अभी, जो भी जितने भी पॉइंट में भक्ति कर रहे हैं या थोड़ी से कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है प्रभु जी, जो एक तो अलग से ना खुशी होता है, कहीं अकेले भी बैठे रहो तो एक तो अंदर में ना आनंद रहता है, मतलब शांति रहता है, बहुत अच्छा लगता है वो फीलनेस ना प्रभु जी। ये चीज हम अपने आप में भी महसूस किए हैं, भले भगवान को देखे न देखे, या फिर हम किसी को जाने न जाने, या भक्ति करे न करे, जो चीज की है अभी तक, उससे ये सिर्फ हम समझ में आया प्रभु जी हमको, अलग सा खुशी, मैंने अकेले भी हैं तो शांति भी है और अच्छा भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि टेंशन में है और हमको कहीं कुछ करना है, कुछ मिलना चाहिए, इससे कमी है, मैंने कमी वाला चीज तो खत्म हो गया मुझे मेरे में, कि मेरे में कमी, मतलब हमको कमी है, इस चीज का चाहिए हमको, बहुत ही चीज और चाहिए वाला चीज खत्म हो गया है। ये चीज अच्छा लग रहा है, एहसास है, पूरा एहसास होता है ये वाला चीज। तो बिना भगवान के दिए तो नहीं हो रहा है प्रभु जी, ये तो भगवान दिए हैं। वेरी वेल, वेरी नाइस। यस, सुनीति राधिका माता जी। ईश्वर प्रभु जी, जैसे जब मन में कुछ लगता है कि ये भगवान के कारण ही हो गया, नहीं तो एकदम भी नहीं होता, बस वो काम हो जाता है। हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं कि भगवान के कारण हुआ है, लेकिन थैंक यू तो कभी नहीं बोलते, भूल ही जाते, काम हो गया, बस अपना एकदम दूसरे में बिजी हो गए, तो ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा हुआ आप बोले, अब से ध्यान याद रखेंगे, बोलना थैंक यू। हम लोग भूल भी जाते हैं। ऐसे हुआ था ना नरसिंह मेहता का, वो कहाँ गया था, बेटी का शादी के लिए कहाँ गया था पैसा जुगाड़ करने, वहां भागवत हो रहा था, भूल ही गया, वहीं भागवत सप्ताह 7 दिन अटेंड कर लिया। बाद में जब गांव में आया तो सब लोग उनको क्या बोलने लगा, वाह बहुत अच्छा से आपने बेटी का शादी निभाया। क्या निभाया? उनको लग रहा है ताना मार रहा है सब। बोले नहीं सचमुच, कितना सुंदर आपने खिलाया, कितना सुंदर आपने आयोजन कराया। बोले अरे क्या हो रही है, सब क्या बोल रहे हैं मुझे, मैं तो भूल ही गया बेटी की शादी। तो ऐसे कुछ है ना स्टोरी में। फिर जाकर पता चला कृष्णा कर दिया उसका, बेटे का भात भरना को बच्चा का शादी में सब कृष्णा कर दिया, उसको पता ही नहीं चला नरसिंह मेहता। हाँ वही तो गोद भरा अनुष्ठान में नहीं, शादी का भात, शादी का होता है, एक तो माए के भाई लोग आते हैं, वो वाला में भात ना, शादी छोड़ के गोद भरा अनुष्ठान में भी भगवान ने उसको हेल्प किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। अगला श्लोक, टाइम है क्या है? द्वौ भूत सर्गो लोकस्मिन्, द्वौ भूत सर्गो लोकस्मिन्, देव आसुर एव च, देव आसुर एव च, विष्णु भक्तो स्मृतो देवो, विष्णु भक्त स्मृतो देव, आसुरस्तद् विपर्यय, आसुरस्तद् विपर्यय। এই শ্লোকটি পদ্ম পুরাণ থেকে উদ্ধৃত। এই জগতে দৈব ও অসুর ভেদে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে এক প্রকার মানুষ দৈব ভাবযুক্ত, আর এক প্রকার মানুষ আসুরিক স্বভাবযুক্ত। विष्णु भक्तेरा सुर और जरा तार विपरीत तारा असुर। माय गुडनेस, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। जो लोग भी भगवान का विष्णु भक्त हैं उन लोग को क्या बोला गया है? सुर। तो पहले बोल रहा है ये देश जगत में दो प्रकार का है, सुर और असुर। सुर कौन है? जो विष्णु भक्त है। जो भी विष्णु भक्त नहीं है वो असुर है। हरे कृष्ण। এই শ্লোকটি পদ্ম পুরাণ থেকে উদ্ধৃত। বিষ্ণু ভক্ত বা কৃষ্ণ ভক্তরা দেব দেবতা নামে পরিচিত। নাস্তিকেরা যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না অথবা নিজেদের ভগবান বলে ঘোষণা করে তারা হচ্ছেন অসুর। অসুরেরা সব সময় ভগবত বিদ্বেষী, জড় কার্যকলাপ লিপ্ত। তারা সব সময় জড় জগৎকে ভোগ করার মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে। বিষ্ণু ভক্ত বা কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তরা সবসময় নানা রকম কাজে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু তাদের সেই কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে परमेश्वर भगवान संतुष्टि विधान करा। ओके, तो विष्णु भक्त भी ऑफिस में जाता है, दुकान में जाता है, बहुत कार्य, भौतिक कार्य लग सकता है, लेकिन उन लोग का मेन उद्देश्य क्या है कि उन लोग अपना वैष्णव परिवार को पाले, उन लोग अपना धन कमाकर अपना मंदिरों में डोनेशन दे, सेवा करे, इस तरह से।
तो उन लोग को कार्यकलाप यद्यपि बाहर दृष्टि से लगेगा कि एक ही जैसा है, असुर लोग का जैसा है, लेकिन नहीं, फर्क है। আপাত দৃষ্টিতে দুই শ্রেণীর মানুষেরাই একই রকম কার্যকলাপে লিপ্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অসুরেরা তাদের ইন্দ্রতৃপ্তির জন্য কর্ম করে, কিন্তু ভক্তরা কর্ম করে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান জন্য। উভয়ের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্ম করে, কিন্তু তাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন দেব দেবতা বা ভক্তদের জন্য। অসুরেরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করতে পারে না। তেমনি আবার কৃষ্ণ ভক্তরাও আসরিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারেন না বলে, অথবা কেবলমাত্র তাদের ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের জন্য কুকুর বিড়ালের মতো কাজ করতে পারে না। तो देखिएगा भक्त लोग भी जैसे वो पृथ्वीनंद पे माता जी बता रहे थे ना अभी, वो कुकुर बिराले मतो काज करते पारे ना। जब पता चल गया जीवन का उद्देश्य क्या है, तब भक्त लोग सोचेगा कि आई विल कीप टू द बेसिक्स। कीप टू द बेसिक्स का मतलब मालूम है, जितना मेरा प्रयोजन है, जितना दरकार है उतना ही हम खटेंगे, बाकी समय हम भगवान का भजन कीर्तन में टाइम देंगे। लेकिन सोचिए जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, देखिएगा बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। कंपटीशन और कैसे 10 का 20 किया जाए कम समय में, बहुत उसको बोलता है, बहुत करियर ओरिएंटेड होता है, बहुत पैसा पैसा लालच, पैसा और कैसे और बड़ा पोस्ट और बड़ा पोस्ट और बड़ा पोस्ट और बड़ा पैसा और पैसा कैसे कमाया जाए, इसके बारे में दिमाग में घूमता रहता है। रात में जब सोता है वही सोचता है कि और ठीक है अभी इतना मिल रहा है, अभी कैसे और प्रमोशन मिले, और कैसे हम अपना टाका को और डबल कैसे करें, हाँ उसको कैसे टक्कर दे, उसको कैसे टक्कर दे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए दूसरे को हटाना भी जरूरी है। ये सभी दिमाग में घूमते रहता है, पैसा 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 पैसा, और अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। जितना पैसा आता है आगे हम ये स्टैंडर्ड में अभी और बड़ा और बड़ा, और उसको मेंटेन करने के लिए और बड़ा और बड़ा और पैसा और पैसा। ये पैसा 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 ही घूमते रहता है, सारा दिन सारा रात भी उसी के बारे में सोचते रहता है। और इन लोग के दिमाग में कभी भक्ति नहीं घुसता है, भजन कीर्तन कभी नहीं घुसता है। वो लोग सोचेगा अरे हम क्यों क्लास करें सुबह 6 से 7, वो 6 से 7 में और 1 करोड़ ज्यादा कमा सकता हूँ ये करके, ऐसे कुछ दिमाग में आ जाएगा। कोई बोलेगा संडे चलिए मंदिर, संडे क्यों जाऊं, संडे में हम दूसरा कुछ करके और पैसा कमा लेंगे, ये सब घूमते रहता है। तो लेकिन भक्त लोग का क्या होता है, भक्त लोग को मालूम है कि हमको क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। भक्त लोग को मालूम है कि जितना मैं जड़ जगत में एक्सपोज रहूंगा उतना मेरा चेतना दूषित होगा, है ना। जितना ये सब कर्मी लोगों के संस्पर्श में करूंगा उतना, जैसे सोचिए आप सफेद कुर्ता पहन के घर से निकला है मंदिर जाने के लिए, और उस दिन होली ठहरा, होली, तो सब एकदम देखिएगा रास्ते में सब काला पीला नीला सब हो गया, ऐसे व्यक्ति लोग घूमे रहे एकदम, है ना, जो एकदम काला पीला नीला लोग घूम रहे। अभी आपको बोल रहे अरे अरे आइए आलिंगन करो, अरे आओ आओ आलिंगन, अरे अरे हैंडशेक तो करो कम से कम। लेकिन आपको मालूम है आप उन लोग के साथ हैंडशेक भी करेंगे, आलिंगन खेलना तो दूर की बात, तो उनका पूरा रंग आपका शरीर में आ जाएगा, है ना, आपका सफेद कुर्ता हो जाएगा वो रंगीन कुर्ता। तो वैसे ही ये जड़ जगत के संस्पर्श में भक्त लोग आने में बहुत डरते हैं। उनको मालूम है कि मैं दूषित हो जाऊंगा, मैं सब कर्मी लोगों के संस्पर्श में आऊंगा तो मैं भी बहुत डिफिकल्ट है, हम भी वैसे ही बन जाएंगे। सोचिए जो व्यक्ति, जो भक्त कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, सोचिए ऐसे बहुत भक्त है ना जो फैक्ट्री में काम करता है, और फैक्ट्री में सब लेबर लोग का भाषा तो आपको अच्छा से मालूम है, तो उन लोग के साथ रहते 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 अपने आप को बचा के रखना, उस भाषा वो आना, उस भाषा तो आपका दिमाग में घूमेगा ही। उन लोग जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो भाषा तो दिमाग में घुसेगा, सब गाली गलौज करते रह रहा है। उस परिस्थिति में कैसे, तो व्यक्ति भी अपने आप को फिर आस्ते आस्ते साइड कर देगा, सोचेगा इससे अच्छा 2-4 पैसा कम कमाऊं लेकिन ऐसे संगत ना हो, है ना। भक्त तो अपने आप को बचा कर रखेगा। यस, नरेंद्र सरोवर प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। आप अभी जैसे बोला ना कि पैसा के बारे में, तो इसमें हम सुना था जैसे हम लोग को 3 स्तर है। जैसे बच्चा बचपन में उसका पास
बल रहता है, समय रहता है, पैसा नहीं रहता। जैसे यंग जनरेशन में जैसे आ जाता है तो उसका पास क्या होता है, पैसा रहता है, पैसा मैंने समय नहीं रहता, पैसा रहता है, पैसा के लिए कमाते हैं बहुत से, और समय भी नहीं है और बल नहीं रहता है। अब बुढ़ापा जैसे होता है, पैसा रहता है और समय भी है किंतु बल नहीं है। तो इस पैसा का चक्कर में हम लोग है। आप अभी भी जैसे कंपनी के बारे में बोला, तो जैसे वो लोग बातचीत होता है वैसे परिस्थिति में हम है, पूरा एकदम पूरा वो लोग पूरा जैसे यहाँ परिस्थिति है ना, उसी का परिस्थिति में हम रह रहा है, उसी का ऊपर में हम मन कान को जैसे इसकन बोला ना, एक कान में रुका वो कान में गला, उसी परिस्थिति में हम रह के क्लास ले रहे। जैसे और एक बात है प्रभु जी कि जैसे हम लोग को सोना को चिन्ना होगा तो कैसे, उसको पॉलिश करने से, नया डिटर्जेंट से धोने से नहीं होगा, उसको आग में तपाना होगा, तब वो आपको सोना का असली सोना में पता है। ऐसे भक्त जो है, हम लोग 1 घंटा जो क्लास में बैठा रहता है, इसमें हम लोग को तपता है, इसमें हम लोग तपता है, तो असली सोना है कैसा है। नहीं तो 1 घंटा बहुत जो सुनता है उसको मालूम है क्या है। सोना का चिन्ना होगा तो वो आग में फेंकना होगा, तपना होगा। तो ये तीनों चीजें हम रिलेशन कर रहा है, बहुत है, बहुत है। हरे कृष्ण। তেমনি আবার কৃষ্ণ ভক্তরা আসুরিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারেন না, অথবা কেবলমাত্র তাদের ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের জন্য কুকুর বিড়ালের মতো কাজ করতে পারেন না। नहीं कर पाएगा, कुकुर बिराले मत उतना नहीं पाएगा, वो सोचेगा कि मैं रजोगुण तमोगुण आ जाएगा। সেই রকম কার্যকলাপে কৃষ্ণ ভক্তরা उत्साही হন না, उत्साही হন না। कोई अगर आपको बोला, सुनिए मैं आपको एक बिजनेस प्लॉट बता रहा हूँ, इसमें हम लोग सुबह से रात तक ये करेंगे और ये पैसा आ जाएगा, तो बोले भाई हम सुबह से नहीं उठ पाएंगे, हम सुबह नहीं जा पाएंगे, हम सुबह हम अपना भजन कीर्तन करते हैं। अरे चलिए 2 बजे से हम लोग ये करेंगे और डेली हम लोग का 10,000 रुपया आ जाएगा। अरे भाई हम नहीं जाएंगे, वो समय हमारा भजन कीर्तन के लिए मंगल आरती करता है, हम नहीं जा पाएंगे, ना बोल देगा, रिजेक्ट कर देगा ऑफर को। ভগবত ভক্তরা কৃষ্ণ ভাবনাময় সক্রিয় থাকার জন্য জীবন ধারণের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করে। उनकी डिमांड भी कम रहता है। एक तो सोचिए ये नशा का पैसा खर्चा हो बच गया, कांदा लहसुन का पैसा बच गया, सिगरेट बीड़ी तंबाकू और चाय का पैसा भी बच गया। चाय भी तो महंगा है ना, कहता 500-600 रुपया किलो है चपत्ती। दूध भी चाहिए, उसके साथ दूध भी चाहिए, ये भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, सब कितना खर्चा बच जाता है ना। नॉन वेज भी तो कितना कॉस्टली है, नॉन वेज। हरे कृष्णा। हाँ, बनाने के झमेला, चाय बनाने के झमेला से बच गए। हाँ, अब झमेला भी है, बनाना पड़ता है, बार बार पियो, थोड़ा बाद फिर से चाय दो, और एक कप चाय दो, और एक कप चाय दो तो कितना खर्चा बच गया। अब सोचिए, अब जुड़ेंगे तो देखिए बहुत लंबा खर्चा बच गया। फिर क्या होता है, भक्ति मार्ग में आने के बाद ये सब बाहर का पार्टी, और पार्टी में जाइएगा तो एक दूसरे को गिफ्ट देना पड़ेगा, गिफ्ट लेना पड़ेगा, ये तो चलते रहता है, देना लेना देना लेना देना लेना, ये सब बस से बच गया ना हिसाब जोड़ेगा तो बहुत लंबा पैसा बच गया इस्कॉन में आने के बाद। उसीलिए उन लोग क्या करता है, जब इतना खर्चा बच गया तो उतना खटने भी बच गया, उतना खटने का कोई दरकार नहीं है। डिवोटीज वो सोचिए मेरा जो पेंशन आता है उसी से चल जाएगा, थोड़ा क्या है, 2 रोटी खाएगा, थोड़ा साग खा लेगा, हो गया खत्म। सोचिए डिवोटी बाजार करने गया, पॉकेट में 50 रुपया है, हो जाएगा आराम से। हाँ, वो क्या करेगा, जाकर एक तो साग लेगा, 10 रुपया 5 रुपये में साग मिल जाता है, और क्या लेगा, एक तो थोड़ा पटल खरीद लिया, 80 रुपये किलो जा रहा है, 200 ग्राम ले लिया, हो गया, 2-4 दिन का हो जाएगा। और थोड़ा एक थोर ले लेगा, थोर बनाना स्टेम, वो 10 रुपये में आता है, उसका एक थोर का भाजा खा लेंगे। ऐसे करके साग, थोर, भाजा और पटल हो गया खत्म 50 रुपया में। अभी एक नॉनवेज वाले को 50 रुपया दीजिए, बोले जाओ बाजार करो, बोले ये क्या, 50 रुपये में एक हड्डी भी नहीं आएगा बोलेगा हड्डी भी नहीं, क्या दे रहा 50 रुपये में, कुछ नहीं आएगा, जाओ तो फेंक दो, कुछ नहीं आएगा, तो है ना। तो भक्त होने के बाद कितना हम लोग का सुविधा है, और जितना हम लोग पैसा कम खर्चा करेंगे तो बच ही जाता है, उतना दरकार नहीं लगता पैसा। इसीलिए ভগবত ভক্তরা কৃষ্ণ ভাবনাময় সক্রিয় থাকার জন্য জীবন ধারণের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করে। বাকি শক্তি তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রচারের জন্য ব্যবহার করে। हरि बोल। अपना टाइम, अपना मनी, एनर्जी भक्ति को प्रचार करने के लिए लगाता है।
हम लोग देखते हैं कितना लोग, कितना सर्वेंट लीडर लोग अपने घर में भक्ति वृक्ष किया, बहुत लोग हैं ऐसे सालों साल ऐसे खर्चा किया, प्रसाद के लिए पीछे खर्चा किया, और फिर ऐसे ऐसे बहुत बहुत खर्चा दूसरे चीजों में लोग खर्चा कर लेता है। हमारे बीच इंदिरा सखी माता जी हैं, वो भी उनके घर पे भक्ति वृक्ष 2000 कितना 13-14 में शुरू हुआ था। हाँ, तो तब से घर में भक्त लोग आकर उन लोग के लिए प्रसाद बनाना, तो उसमें भी फिर समय भी देना, दिन दारन प्रभु इंदिरा सखी माता जी समय भी देकर क्लास कराना। हर एक रविवार लोग बोलते हैं हम लोग घूमने, एक ही दिन छुट्टी मिलता है, उस दिन भी आप फंसा लिया प्रभु, लेकिन भक्त लोग रविवार को प्रचार करने जाता है। हम लोग ने देखा अद्भुत चरण प्रभु हम लोग का बालीगंज भक्ति वृक्ष में प्रभु का कितना बिजी स्केड्यूल रहता है। सारा हफ्ता प्रभु 6 दिन ऑफिस में और बिजी रहते हैं प्रभु, 7वां दिन जो एक दिन छुट्टी मिलता है, वो भी एक दिन लेक टाउन से जाता है बालीगंज। सोचिए कहाँ, नॉर्थ कलकत्ता, कहाँ बालीगंज। हाँ, वहाँ जाकर शाम को भक्ति वृक्ष कराना, फिर जाने आने में भी तो कितना समय चला जाता है। इस तरह से भक्त लोग अपना समय को भगवान का सेवा में अर्पण कर देता है, आहुति देता है ना। বাকি শক্তি তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য ব্যবহার করেন। এভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে তারা এমনকি মৃত্যুর সময়ও শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। वही चिंता, श्री कृष्ण कथा माने श्री कृष्ण कथा के, भगवान के लीला के बारे में स्मरण आ सकता है, भगवान के सेवा के बारे में भी स्मरण आ सकता है। अरे मेरा ये तबीयत खराब होने के नाते मैं 1 महीना से माला सेवा नहीं जा पा रहा हूँ, किचन सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करे। मैं कितना अच्छा भगवान को ये आइटम बनाकर खिलाते थे गोविंद जी को डीटी किचन में, अभी 1 महीना से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसे मृत्यु के समय वो हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए हैं, लेकिन वही सोच रहे हैं अरे क्या होगा क्लास का, भक्ति वृक्ष क्या होगा, अभी हैंड ओवर नहीं किया किसी को, क्या करेगा अभी। वही चिंता चल रहा है। এবং তার ফলে তারা কৃষ্ণ লোকে উন্নীত হন। ভগবান तुरंत आके उन लोग को ले जाते हैं, एकदम आलिंगन करके ले जाते हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে अमृत लहरी কদম ভরিয়া সবে বল হরি হরি हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।